start with it. Okay. So they are telling you that we try to complete more than and comprehension type and match the column to easy hai, that you all can do a little. So next time we can start with subjective. The potential energy of a particle of mass 5 kilogram is moving in the xy plane of potential energy is 7x 24y. So it is a 2D motion. Initially at time 0 the particle is there at the origin. Okay, time 0 per where is he is at the origin. Okay, moving at the velocity of, so initial velocity vector is given as 8.6 I cap plus 23.2 j cap meter per second. This is correct. Firstly, they are asking you what the velocity of the particle at t is equal to 4 seconds is 5 meter per second. That we'll see later on. So as I told you, more than one को आपको एक एक क्वेश्चन की तरह लेना पड़ेगा. So first I am doing this question, the A part. Can anyone tell me how to find the final velocity? सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन के लिए हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन. सो वी नो दैट फोर्स इज माइनस डी यू बाय क्या भाई, डी आर. दैट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई j cap. This is 2D motion. We have discussed this thing. Correct है? हेलो, yes or no? So इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? माइनस 7 आई कैप 24 j cap, and acceleration vector will be divided by mass. Minus 7 by 5 I cap plus 24 by 5 j cap. And then आपको v मांगता है, तो v bar in 2D motion is u bar plus a bar into t. U bar is given as 8.6 I cap plus 23.2 j cap plus a bar is given as कितना है, माइनस, ये माइनस हो गया 7 by 5 I cap plus 24 by 5 j cap. Okay, so this answer will be the final velocity. तो final velocity अगर आप देखने जाएंगे तो what is 7 by 5 बेटा? 7 by 5 कितना होता है? हेलो, 5 1 जा 5 यार बोलो ना, 6 7 1.4 बराबर है क्या? हेलो, और ये 5 4 जा 20 4.8 j कैप इंटू टी भी करना पड़ेगा. टी कितना सेकेंड्स है? 4 सेकेंड्स है. सो ये हो जाएगा 14 4 जा कितना होता है? 14 4 जा हेलो कितना होगा? 56. और 8.6 माइनस 56 कितना हो गया? 3 हो गया ना. हेलो हेलो यार बोलो. सर करेंगे ना. और दूसरा वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? 4.8 इंटू 4 48 4 सा कितना होता है? और 23 से उसको माइनस करना है. जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? 4 answer. Answer is 4. Okay, so this will, yeah, 4 j cap. Can I say the magnitude of the velocity will become 5 meter per second? Correct, right? Hello, are you all understanding or not? Yes, sir. Baba? यस सर. Okay, second part क्या बोल रहा है? Acceleration of the particle is 5. Acceleration तो ये है, इसका magnitude अगर हम निकाल देते हैं
तो इट इज कितना आ गया भाई? वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना? 7/5। 7/5 का स्क्वायर प्लस 24, तो इट विल बी रूट ऑफ 49/25 प्लस 24 स्क्वायर बाय 25। हेलो, यस और नो? अरे भाई करेक्ट है क्या? हेलो, Yes, sir. इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, जरा 5. देखो भाई। 5. डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सी, the direction of the motion of the particle initially at time 0 is at right angles to the direction of acceleration. Okay, ये तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये सही है कि गलत है। The direction of motion of the particle initially is at right angle to the, so direction of motion is I cap and j cap, and this is minus I cap and minus j cap. And what is the magnitude of the initial velocity that we need to see? देखो भाई, ये डायरेक्शन इसका 8.6 I cap है और ये है 23.2 J cap, ये। और ये दूसरा वाला जो दिस इज द वेलोसिटी की बात हो रही है ये, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इट इज -7/5, दूसरा वाला इज 24/5। करेक्ट है? हेलो, यस और नो? क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? हेलो यार, इसका इसका तो इधर आएगा ना किधर वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी इधर आएगा, क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? हेलो, No. नहीं है ना, दिस इज रॉन्ग। दे मे बी इन सम अदर डायरेक्शन, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। And the path of the particle is a circle. No, it will not be a circle. Why? Because to be a circle, the direction of velocity at every instant and the direction of force at every instant should be perpendicular. मालूम है ना आपको? तो हेलो, at every instant the force and the velocity should be perpendicular, which is not at all possible. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर भी गलत है। ठीक है, हेलो, डिड यू ऑल गेट इट? हेलो, हाँ ना बोलो, यस और नो, करेक्ट है? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. फाइन विद इट। नाउ I am doing the third one. All are that type only. Third one करता है। One end of the light spring or spring constant K is fixed to a wall and the other end is tied to a block. In the displacement, the work done by the spring is half kx square. What do you mean by work done by the spring is half kx square? What do you mean by this? Is plus half kx square. What do you mean by this plus sign? That means the force and the, are in same direction. बहुत सही है। मतलब एक्चुअली क्या था, हमने ये सपोज इसका मीन पोजीशन है, हमने क्या किया रहेगा, इसको कंप्रेस किया रहेगा बाय डिस्टेंस ऑफ x और उसको छोड़ दिया रहेगा हमने। तो जब हम छोड़ देंगे इसको, यस और नो, क्या होगा? वेयर विल बी द फोर्स एक्टिंग एंड वेयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? प्लीज टेल मी। हेलो, इफ दिस इज द पोजीशन एंड आई लीव इट, व्हेन आई Towards लीव इट, right. just leave it, so the force is also here and the displacement is also here. So can I say at that moment when it comes here from here to here, so can I say this will be the initial position and this will be the final position? And can I say in this case
the work done by the spring is plus half kx square. बोलो. हेलो हेलो. चलो आप लोग सोच के बताओ which of the options are correct now. जल्दी बोलो. A and B. The spring was initially compressed by a distance x and finally comes to a natural length. ये बहुत सही है. Okay. Second point भी हो सकता है. It is initially stretched. Suppose मैंने इधर stretch किया और इसको छोड़ दिया, तो this could also be initial point, and when I leave it, force will be here and displacement will also be here. तो चाहे आप compress करो या आप expand करो और you leave it, work done by the spring should be positive half kx square. So B is also the answer. Getting enough? Hello. Hello. Can anyone tell me when will work done be negative? Hello. Bolo. What will be the answer in that case? Hello. When will, क्या हो रहा है? It will be always negative. Work done by the spring, will it be negative? It will always be negative. Yes, sir. Always be negative कैसे होगा? Which positions it will be negative? So if final position is natural length, then it'll be positive. हाँ. Final position is natural length, then it will be positive. Otherwise, if initial position is natural length, if the initial position is natural length, then work done will be negative. Okay, देखो, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा. सही है ना? Yes, sir. Hello. So that moment force इन दोनों केस में F and X same direction. इन दोनों केस में F and X opposite direction. क्या? ठीक है ना? सब चीजों को ध्यान रखो. Please pay attention. Yes, sir. Question number 5. Very, very, very important question. Please pay attention to me. Okay. Question number 5. A disk of mass 3m and a disk of mass m are connected by a massless spring of stiffness k. The heavier disk is placed on the ground, with the spring being vertical, and the lighter disk is on the top. From its equilibrium position, the upper disk is pushed by a distance and released. अब देखो एक्चुअली होने वाला क्या है. ये डिस्क है 3m का. यहां पर एक, सुनना, ये मेरी बात सुनना सब लोग अभी, प्लीज पे अटेंशन. ये सपोज मैंने यहां से एक मास इस स्प्रिंग पे रख दिया. अब सुनो सब लोग मेरी बात. And the spring over here is in natural length. Natural length मतलब इसमें extension 0 है, compression 0 है. अब क्या इसे जब मैंने इधर रखा, जस्ट मैंने when I keep it, ये थोड़ा दब जाएगा. हेलो, अरे भाई yes or no?
हेलो, when the Yes, sir. spring is there in the natural length, ये थोड़ा सी दब जाएगा, तो कितना दब जाएगा? नहीं से ये 3m का 3m है, डायग्राम को ध्यान से पढ़े, ये थोड़ा सी दब जाएगा इधर, ये उसका नेचुरल लेंथ है। सपोज ये इतना दब गया, स्प्रिंग अभी इतना हो गया, और ये मास जो है मैं इधर आ गया। कैन आई कॉल दिस एज एक्स नॉट? चलेगा? ओके, दिस इज द, दिस पोजिशन इज विच पोजिशन? हेलो, Equilibrium. नेट फोर्स 0 है ना? विच इज द नेट फोर्स? कैन एनीवन टेल मी which two forces are the net forces making 0? Weight and spring force. वेट एंड स्प्रिंग फोर्स। वेट कितना है भाई इसका? mg है, और यहां से एक आ रहा है के एक्स नॉट, एक्स नॉट दबा है ना। कैन आई से हाउ मच इज एक्स नॉट इक्वल टू mg बाई के? अरे दोनों सेम है ना, एक्स नॉट विल बिकम mg बाई के। बोलो हेलो। Yes, sir. अब ये चीज क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा है ना, वो ये है, वेर एफ नेट इज 0। कैन आई से और अपर डिस्क को और प्रेस किया उसके नीचे बाय अ डिस्टेंस डेल्टा, 8 नहीं है वो डेल्टा है, एंड देन रिलीज्ड। सो कितना दबाना चाहिए, कितना प्रेस करना चाहिए? इफ डेल्टा इज 3 mg बाई के, और दबाएंगे, डेल्टा इज मोर, मोर एक्स नॉट के ऊपर, और because delta is measured from the mean position, equilibrium position, the lower disk will bounce up. If delta is 2 mg by k, the maximum normal reaction from the ground is 6 mg. ओके, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करता हूं मैं पहले बी से, बी पॉइंट से शुरू करता हूं मैं। सब लोग इधर बात सुनना, ओके? कि डेल्टा अगर हमने 2 mg बाई के और प्रेस किया, तो सपोज मैंने इतना और प्रेस किया, ध्यान ध्यान से, हाँ प्लीज प्लीज ध्यान से, एकदम ध्यान से। सपोज मैंने इसको और प्रेस किया, डेल्टा, इस डेल्टा इन द फर्स्ट केस इज हाउ मच? 2 mg बाई के, वो बाद में 3 mg बाई के बाद में लेते हैं। ये तो 3m, तो 3m ही है। स्प्रिंग इतना हो गया, यहां पर जो मास है वो मास है, बराबर है क्या? ओके, कोई बता सकता है अभी स्प्रिंग फोर्स कितना हो चुका है? स्प्रिंग फोर्स कितना हो चुका है अभी? हेलो यार बोलो, स्प्रिंग फोर्स कितना हो चुका है? अरे यार, पहले पहले तो के एक्स नॉट था ना, एंड के एक्स नॉट इज बैलेंसिंग व्हाट mg ना। हेलो, 3 mg. हाँ 3 mg। कैसे पता चला बेटा? 2 mg इतना दबाया, mg ऊपर का। हेलो हेलो Yes, sir. भाई, इधर कितना आएगा फोर्स? एक्स्ट्रा फोर्स कितना आने वाला है? ये जो आएगा ना, ये बोलेगा ना, ये दोनों तरफ रहेगा ना, ये कितना आएगा अभी? के 3 एक्स mg. नॉट, तो ये तो फ्री तो था ही, प्लस के डेल्टा। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? के Yes, एक्स sir. नॉट तो फ्री था, के एक्स नॉट का वैल्यू कितना था? mg था, बराबर क्या? और के डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है 2 mg बाई के, कितना आ गया? 3 3। mg. तो मतलब ये जो फोर्स है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ये देखो, क्या से ये 3 mg है, और इसका वजन भी 3 mg है। तो अगर हम जमीन पे पड़े हुए ये 3 mg को देखें, तो ये अपना 3 mg तो लगा ही रहा है, और ऊपर से जो स्प्रिंग फोर्स आ रहा है वो भी 3 mg आ रहा है। So can anyone tell me how much is the normal reaction offered by the ground? अरे यार भूलते नहीं हो तुम लोग, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 6 mg. नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम 3 + 3, दैट इज 6 mg। ये आंसर सही है, बराबर है क्या? हेलो, आपको समझ में आ रहा है बात? हेलो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एडवांस के अंदर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ये टाइप के। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ओके ठीक है। अब ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 2 mg द मैक्सिमम रिएक्शन ऑन द ग्राउंड इज 4 mg, ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज एक सही है तो दूसरा वाला गलत है। अब ये कह रहा है कितना प्रेस करके छोड़ेंगे तो द लोअर डिस्क विल बाउंस अप। अब मजा आएगा, सब लोग इधर मेरी बात सुनना, बहुत मजा आएगा। लोअर डिस्क को उठाने के लिए, मेरी बात सुनो, मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। लोअर डिस्क को उठाने के लिए कितना फोर्स मांगता है, मिनिमम कितना 3 फोर्स मांगता है mg. जस्ट उठाने के लिए? तो जस्ट लिफ्ट करने के लिए यू रिक्वायर अ फोर्स ऑफ हाउ मच, 3 mg, बराबर क्या? हेलो, ये तो सब लोग मानते हो? अरे मैन टेल मी यार, Yes, sir. ये Yes, सब sir. मानते हैं कि भाई 3 mg फोर्स आना चाहिए। ओके, अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कोई बता सकता है व्हाट विल बी द आंसर? इधर द आंसर कैन बी ए और द आंसर कैन बी डी। इधर द आंसर कैन बी ए और द आंसर कैन बी डी। आपको सोचना है, मैं आपको एंड में आंसर बता दूंगा पूरा प्रूफ करके, बट आप मुझे सोचकर बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं 3 mg प्रेस करूं या मैं 4 mg प्रेस करूं? हेलो हेलो, मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद में और कितना दबाना है नीचे? 3 mg दबाना है कि 4 mg दबाना है? आप क्या तुक्का मारो यार, चलो फ्लुक मारो। व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? रॉन्ग तो रॉन्ग है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट थिंग? A. ए विल बी द आंसर। यू आर टेलिंग मी कि सर भाई 3 mg आप प्रेस करेंगे तो फोर्स आएगा 3 mg, उसको छोड़ देंगे तो फोर्स 3 mg आएगा और वो ऊपर उठ जाएगा, बराबर है क्या? हेलो हेलो, यस और नो? Uh, एनीवन एल्स कैन ट्राई? ठीक है, चलो भाई, मैं मेरी बात सुनो, सब लोग अभी इधर मेरी बात सुनो। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, पूरे स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। ये स्प्रिंग है, ये 3m है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये m है। कैन आई से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है? क्या होता है यार? क्या होता है, क्या होता है, क्या F होता है? net 0. एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो मतलब के एक्स नॉट। तो नेचुरल लेंथ आया था ना, ये नेचुरल लेंथ है ना स्प्रिंग का। हेलो, इतना दब गया ना, ये के एक्स नॉट, ये ऊपर है और एम जी नीचे है, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो एक्स नॉट विल बिकम एम जी बाई के, बराबर है? हेलो हेलो, अच्छा तो कैन आई से अभी फिलहाल इसमें के एक्स नॉट है एंड इसका इक्वल एंड ऑपोजिट के एक्स नॉट इधर भी है। अरे है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ये एक्स नॉट अभी इधर भी है। अब आपने मुझे कहा कि इसको अगर आपको उठा देना है तो आपको कितना फोर्स मांगता है? जल्दी 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 जल्दी, कितना उठाना है, कितना फोर्स मांगता 3 है यहाँ पे? mg. 3 mg चाहिए। 3 mg, ओके, के लिए, और 3 mg अपवर्ड के 3 mg डाउनवर्ड? 3 mg Upward. अपवर्ड के 3 mg अपवर्ड। हाँ, मतलब स्प्रिंग अगर ऊपर जाए, सुने, हाँ मेरी बात सुने प्लीज, और स्प्रिंग यहाँ पे कितना लगाना चाहिए? 3 mg, बराबर क्या? हेलो हेलो, अच्छा एक और एक बात सुनेंगे आप मेरी, कि जो जो एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग में, एक्सटेंशन जो होगा दैट विल हैपन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हेलो, जो एक्सटेंशन होना है ना स्प्रिंग में, दैट शुड हैपन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। भाई स्प्रिंग के लिए उसका ओरिजिन क्या है? स्प्रिंग के लिए उसका नेचुरल पोजीशन क्या है? उसका नेचुरल लेंथ ना। हेलो हेलो, यस और नो?
Yes, sir. कैन आई से ये जो नेचुरल लेंथ है ये स्प्रिंग का नॉर्मल पोजीशन है, बराबर है क्या? नेचुरल लेंथ का मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं है इधर, बराबर। ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ड्यू टू द ब्लॉक। Always remember from the in the spring you always count from the natural length. हेलो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? In the spring the extension or the compression is always calculated from the अरे यार, Natural length. natural length, natural length। अब मेरी बात सुनो, हाँ, क्या हो रहा है देखो, मेरी बात सुनो, सब एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आपने यहां पर था, इसका पोजीशन यहां पर था। सपोज आपने इसको 3 mg दबाया, कितना प्रेस किया आपने इसको? सुनो हाँ मेरी बात, कितना प्रेस किया इसने आपको? आपने कितना प्रेस किया यार, बोलो ना, कितना प्रेस किया? 3 mg/k. बाई के प्रेस किया और आपने छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया तो ये ऊपर जाएगा। हेलो, हेलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? Yes, sir. ऊपर गया 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 गया। कैन आई से यहां पर जब वो आया तो कैन आई से mg/k तो उसने लूज कर दिया। हेलो, कैन आई से इसके बियॉन्ड आपको जो जाना है और आपको कितना मांगता है? इसके बियॉन्ड जाके आपको कितना चाहिए? 3 mg/k. 3 mg/k मांगता है ना, यस और नो? और फोर्स कितना चाहिए? 3 mg चाहिए, सही है ना? हेलो, but can I say when it is going, when I press downward by 3 mg/k, in going up to the natural length it is losing mg/k, तो इसका extension from the natural length कितना रहेगा अभी? 2 mg ना खाली। हेलो, because it is losing mg/k over here ना, to get to its own natural length। हेलो, हेलो, नहीं समझ Yes, में? sir. मैं देखो, मैं यार ये mg/k वे छोड़ो, मैं आपको है ना एक इजी मेथड बताता हूँ। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये नेचुरल लेंथ है। इधर सपोज आप एक का लॉस करते हो, एक नंबर का लॉस करते हो, लॉस करते हो। अच्छा, स्प्रिंग में हमेशा ऑलवेज एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेयर इन अ स्प्रिंग। ये रूल याद रखना पड़ेगा, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, सही है। अभी सपोज ब्लॉक को आपने दबाया दो, आपने दबाया दो, तो दबा के आपने छोड़ दिया, आपने इधर इधर तक प्रेस किया और आपने दबा के छोड़ दिया, तो कोई बता सकता है वो नेचुरल लेंथ के कितना ऊपर जाएगा? एक नंबर के दो नंबर? हेलो, नेचुरल लेंथ के कितना ऊपर जाएगा? एक. एक नंबर ही जाएगा ऊपर, यस और नो? अरे बिकॉज एक नंबर तो ये लूज हो रहा है ना इधर, यस और नो? हेलो, 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 यस और नो? गेटिंग इट और नॉट? आर यू गेटिंग इट व्हाट इज हैपनिंग? Yes, sir. तो कितना प्रेस मुझे करना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक ऊपर उठे? बिकॉज यहां पर तो मुझे 3 नंबर चाहिए ना उठाने के लिए। हेलो, तो मुझे कितना 4. प्रेस करना पड़ेगा? मुझे कितना प्रेस करना पड़ेगा? 4 प्रेस करना पड़ेगा ताकि एक लॉस हो और 3 बच जाए। और जब वो 3 बचेगा तो नीचे भी 3 आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, और उसके वजह से उड़ जाएगा। हेलो, 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 आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ये चीज है, तो ये 4 mg/k आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि mg/k लॉस हो जाए। और जब mg/k लॉस हो गया तो 3 mg/k ऊपर बचा एंड फोर्स आया 3 mg, एंड 3 mg आया तो इट इज जस्ट बीइंग एबल टू लिफ्ट। हेलो यार, कम ऑन यार, दिस इज अ वेरी नाइस सम, कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, sir. क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को? यस, Yes, sir. यस और नो? व्हाट इज द बेसिक concept over here? What is the basic concept? ओके, स्प्रिंग का
compression or extension is measured from where? From where? Natural length. Natural length, not from mean position. करेक्ट है क्या? हेलो, भाई बोलो. ये 3 mg का डायरेक्शन नीचे आएगा, बराबर है ना? हेलो, बिकॉज ये ऊपर है ना. यस और नो? हेलो यार, समझा क्या? आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी एक ट्रिक बता दो. सपोज ये मास m नहीं होके 2m होता, तो मुझे कितना दबाना पड़ता? चलो बोलो. हाँ, 5. 5 mg 5 भाई, बिकॉज 2 तो लॉस हो जाएगा ना. हेलो, अरे यार बोलो ना, सही है क्या? हेलो, Yes, अगर sir. ये मास 2m नहीं होके 3m होता, तो मैं कितना प्रेस करता? 6 mg by k. 6 mg by k प्रेस करना पड़ता, बिकॉज 3 mg by k तो नेचुरल लेंथ तक जाने में चला जाता, एंड 3 mg by k बच जाता. अरे यार, कम ऑन मैन. हेलो, तो दिस इज हाउ वी डू द सम्स बेस्ड ऑन नेचुरल लेंथ एंड इक्विलिब्रियम. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है. वरना क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, मीन पोजीशन से काउंट करते हैं. दैट इज रॉन्ग. नेचुरल लेंथ से काउंट करना है मुझे. ओके, बिकॉज स्प्रिंग का ओरिजिन उसका नेचुरल लेंथ है. खिंचाव या एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन उसके नेचुरल लेंथ से. हाफ के एक्स स्क्वायर जो है इट इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ. अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द सम्स आर इजी ओनली. इसमें कोई दम नहीं है. अभी ये सम अच्छा था, इसलिए हमने आपको सिखा दिया. अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं सीधा. ये सब टाइम पास वाले सम्स है. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. ओके, ब्लॉक ए हैज नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द वेज. मतलब वो ब्लॉक ए जो है वो वेज पर ही है. वेज पर ही है. कोई बता सकता है कौन बैलेंस कर रहा है इसको? अरे यार बोलो ना. और Friction. फ्रिक्शन है ना इधर. सही है क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए इन 2 इज लेस देन 1. अच्छा, 2 नंबर कौन सा है? 2 ऊपर है क्या, वर्टिकल है क्या, हॉरिजॉन्टल है? हेलो, ये 1 है क्या? यू हैव द बुक? हेलो, Yes, sir. हाँ ये सही है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए इन मोशन 2 इज लेस देन मोशन 1. अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैन आई से मोशन 1 ऐसे है, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे है इसका, ये 1 मोशन ऐसे है एंड 2 मोशन ऐसे है. सही है क्या? ओके, और ग्रेविटी का है नीचे है ना, mg. मानते हो ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए इन मोशन 1 कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मोशन 1. अरे यार, वर्क डन इन मोशन 1 बाय 0. ग्रेविटी 0 होगा. क्यों 0 होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर है. थीटा इज 90 ना. देखो तो ये थीटा 90 है ना यार. एंड वर्क डन 2 क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. हेलो, हेलो, नेगेटिव है ना, दोनों एंटी पैरेलल है ना. Yes, sir. Yes, sir. शायद 180. ये तो सही है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए is in motion 2 is less, obviously 0 less. सही है ना? न्यूमेरिकली अगर देखने जाएंगे तो नेगेटिव नंबर कम है. करेक्ट है क्या? वर्क डन इज नेगेटिव ना. हेलो, Yes, sir.
अरे भाई बोलो यार, टू इज लेस। मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो वो बड़ा है, बट अगर हम नेगेटिव की तरह उसकी तरफ देखेंगे तो माइनस है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए इन बोथ द केसेस विल बी पॉजिटिव। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, कैन आई से दोनों केसेस में एंगल अक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? मोशन 1 या मोशन 2 में दोनों केसेस में, अरे यार एंगल अल्फा बीटा ऑब्ट्यूस है कि अक्यूट है? Cute. दोनों केसेस में अक्यूट है, तो वर्क डन इन बोथ द केसेस विल बी व्हाट सर? पॉजिटिव, बिकॉज थीटा दैट इज, थीटा नहीं अल्फा बीटा इज अक्यूट। बराबर क्या? हेलो Yes, sir. हेलो, हाँ ना बोलो मैन, कम ऑन यार, ये सब टाइम पास हो रहा है इधर। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन वन में भी पॉजिटिव। मजा आएगा, सब लोग इधर ध्यान देना। फ्रिक्शन कहाँ है बेटा? फ्रिक्शन कहाँ है? हेलो, towards the right. हाँ, दैट विल डिपेंड ऑन वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। मजा आएगा, इधर ध्यान देना। ये तो mg sin थीटा तो नीचे ही है, इसका कोई कोई टेंशन ही नहीं है। सपोज मोशन 1 इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो सूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. सूडो फोर्स लगने वाला है इधर एम में। अच्छा सपोज एम ए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जो ये ब्लॉक को ऊपर उड़ा कर लेकर जाएगा, तो फ्रिक्शन अपना रास्ता बदल देगा ना। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं तो नीचे जाऊंगा। और सपोज ये एक कम है, तो फ्रिक्शन ऊपर भी हो सकता है। फ्रिक्शन का कोई भरोसा थोड़ी है, इट कैन गिव यू अक्यूट ऑल्सो। दिस इज द मोशन 1 ना। सो कैन आई से वर्क डन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव? मे बी पॉजिटिव हो सकता है, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो ना। अरे क्या बोल रहा हूं, मेरे को समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. एंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मे बी नेगेटिव ऑल्सो, ये भी सही है, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई भरोसा थोड़ी है, आगे भी है पीछे भी है, अक्यूट भी है ऑब्ट्यूज भी है। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? हेलो, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि मोशन 1 इज यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड और क्या, कुछ बोला नहीं है। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ और ए ज्यादा हुआ, तो सूडो फोर्स के कारण वो ऊपर उड़ता जाएगा, तो फ्रिक्शन अपना रास्ता बदल के नीचे आ जाएगा। हेलो, योला एक्सपर्ट, हाँ, कम ऑन नाउ, डोंट टेल मी अबाउट दिस थिंग। यस और नो, क्लियर है ना? हेलो, हाँ भाई, Yes. ठीक है यार, ये तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग काम करते हैं। बाकी तो सम्स ही है, सम्स तो बहुत सारे हमने किए हैं, और सम्स का कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आई विल डू, एंड देन वी विल कम टू आवर concept, other concept। 10th भी easy है, कोई टेंशन नहीं है। The acceleration of the particle with speed v is a, which is b into v. B is a constant vector which is neither parallel nor anti-parallel. Okay, अब इसका क्या मतलब है? It is neither parallel nor anti-parallel. The acceleration of the particle with a speed v, b is a constant vector. Constant vector का मतलब क्या? हेलो, कांस्टेंट वेक्टर का क्या मतलब है यार? Does not change its value with time. यस, ओके, तो डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू विद टाइम, एंड कभी भी ये पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होने वाला है। कभी भी ये पैरेलल भी नहीं है और कभी भी ये एंटी पैरेलल भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? Theta is not equal to 0 or 180. ओके, देन व्हाट इज थीटा इक्वल टू? अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर तो इधर है, एक्सेलरेशन वेक्टर
can be one acceleration which is necessary is centripetal acceleration which is necessary. बराबर है क्या? हेलो, yes or no? Yes, V bar. B bar cross V bar is A bar. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. B bar cross V bar. B bar is a constant vector. B bar. अगर मैं बोलूं B bar cross V bar, that is and B जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब उसका ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. तो B bar cross V bar is A bar. अच्छा, कोई मुझे थोड़ा सोचने पर अगर आप सोच सकते हो, B बार को ये बोल रहा है इज अ कांस्टेंट वेक्टर. कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या? डज नॉट चेंज इट्स, बोलो यार. Magnitude, एंड direction. डायरेक्शन. तो कैन आई से इट इज नथिंग बट एन एक्सियल वेक्टर? हेलो, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हेलो यार, एक वेक्टर ऐसे ही है जो एक्सियल वेक्टर है, जो हमेशा एक्सिस की तरफ ही रहेगा ना. हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो, इट इज ऑलवेज एन एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर मतलब इट इज ऑलवेज आउटसाइड. ये हमेशा, चाहे आप किधर भी जाओ, ये बी बार रहने वाला है. गेटिंग इट? वेलोसिटी किधर भी हो, इधर हो कि इधर हो कि इधर हो कि इधर हो. हेलो यार, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो. Yes, sir. तो कैन एनीवन टेल मी वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार? देन उन्होंने दिया है रिलेशन कि ए बार इज बी बार क्रॉस बी बार. तो आपको उंगलियां घुमाने आता है क्या? स्केलर वेक्टर में मैंने सिखाया था. अरे यार, यू हैव टू टर्न योर फिंगर्स फ्रॉम ए बार टू, अरे बोलो भाई, बी बार, एंड यू विल गेट अनदर वेक्टर सी बार. याद है? हेलो. Yes, sir. तो आपको अपनी फिंगर्स कर्ल लेकर जाना है बी टू वी. तो बी टू वी अगर आप फिंगर कर्ल लेके जाएंगे, बी बाहर की तरफ है, आपके स्क्रीन के बाहर की तरफ है, और ये वी को देखूंगा ना, ये वाले वी को, तो कहना इसे ए बार इधर आएगा इसका. तो आएगा कि नहीं आएगा यार? हेलो, देखो ना, बी बाहर है. बी यार तुम लोग से सिखाओ है, यस और नो? बी इधर है. Yes, sir. आपको उंगलियां टर्न करनी है ऐसी, ओके, राइट हैंड की. तो आपका अंगूठा नीचे आएगा ना. अरे आएगा कि नहीं आएगा मैन? कम ऑन. हेलो हेलो. Yes, sir. ये चीज है. अब ये सही है. अब इधर आ जाते हैं, इधर जाते हैं. बी टू वी अगर टर्न करेंगे, बी टू वी, बी टू वी, हाँ, तो ये इधर आएगा ना. देखो ना, ये बी बाहर है ना, तो बाहर से नीचे की तरफ आऊं मैं, तो अंगूठा अंदर की तरफ आएगा. यस और नो? हेलो. अरे इट इज जस्ट राइट हैंड थंब रूल यार, बोलो ना. Yes, sir. ये बाहर है एंड ये वी है, तो इफ आई गो दिस वे एंड दिस वे, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर इधर आएगा. एंड सिमिलरली बी बाहर है, if I go upward then A ऐसे आएगा. That means it is which motion? Can anyone help me out? Which motion is this speaking about? UCM. It is speaking about UCM. बाबा, UCM के जितनी चीजें हैं वो सब मार्क कर देना है. Velocity is constant, हाँ भाई constant. Work done is zero, हाँ भाई zero. Speed remain constant. नहीं, velocity is constant. No, velocity is not constant. Sorry, wrong हो गया, because velocity तो direction है. Speed is constant. बराबर है क्या? ये दोनों चीजें मार्क कर देना है. Yes or no? Hello.
हेलो 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 यार बोलो, गेटिंग इट? Yes, sir. यही चीज है, थोड़ा सी टफ है. आई डोंट नो वेदर यू आर फाइंडिंग इट टफ और इजी और समथिंग लाइक दैट. तो सही. फाइन. अरे भाई अच्छा लग रहा है क्या? थोड़ा हार्ड हो गया है. यस और नो? हेलो, कम ऑन. तो ये चीज है which we have done it. I'm starting with some comprehension questions. You all can understand this comprehension type. I'll do 1 2 3 जो भी है देखते हैं हम लोग. मैच द कॉलम 2 4 करेंगे तो खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो कुछ नहीं है, एकदम इजी है ये. थोड़ा ट्राई करेंगे तो आ जाएगा. द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है? हेलो, कैन यू सी द ग्राफ? Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज यूएक्स कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं यार, यूएक्स को क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पोटेंशियल Potential energy. एनर्जी. एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट या जो भी है, जो डिस्टेंस है. The x coordinate. It may assume that potential energy depends on x, only on x. For all values of x, u is 0. For x less than -10, यहाँ पर -10 पर u 0 है, सब 0 है. And greater than 15, u is 0. यहाँ पर भी u 0 है. ठीक है ना, इसके बीच में ही u हो रहा है. तो u का ग्राफ ऐसे है, देखो ये ऐसे है, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे जा रहा है. कह रहे हैं इस पार्ट में u पॉजिटिव है, इस पार्ट में भी u पॉजिटिव है, इस पार्ट में u पॉजिटिव है और इस पार्ट में u नेगेटिव है. सही है क्या? हेलो हेलो, क्या मान रहे हो मेरी बात? हेलो, यस और नो? Yes, sir. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 25. कैन एनीवन टेल मी मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? P plus K. अच्छा, के हमेशा क्या होता है? क्या भाई यार बोलो. अरे हाफ एम वी स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना. यस और नो? एंड Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मजा आएगा, एकदम मैथमेटिकल रिलेशन है, एकदम पजल की तरह है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी 25 है, 25 है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हेलो, मिनिमम कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी? 0 हो सकता है ना. Zero. अरे उससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है, नेगेटिव थोड़ी होता है यार. ये चलो, कैन एनीवन टेल मी इन विच रीजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर वी स्पीकिंग अबाउट? कैन आई स्पीक अबाउट? अच्छा मुझे एक बात बताना, अभी मजा आएगा, सब लोग इधर बात सुनो. तो ये ठीक है, ये सब रब कर देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा समझ आए. कौन से रीजन के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ? देखो ना, अगर ये 0 हुआ बेटा, अगर ये 0 हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? हेलो, 25. सही है. हेलो, दिस विल बी विच वैल्यू? Max. मैक्सिमम वैल्यू. उससे नीचे जा नहीं सकता. तो कौन सा रीजन 25 तक मैनेज कर रहा है? ये रीजन. हेलो, -10 to -5. ये नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. ये रीजन हो सकता है क्या? ये रीजन भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है. तो कैन एनीवन टेल मी व्हिच इज द रीजन व्हिच इज मैनेजिंग आवर 25 जूल ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी? -10 to -5 एंड फ्रॉम 6 to 15. सही है ना? Yes, sir.
हेलो, मेरी बात सबको समझ में आ गई क्या? एकदम सिंपल बात है यार, क्या है इसमें? हेलो, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट इज सेइंग व्हाट, पीछे वाला क्या बोल रहा है? इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज -40, मजा आएगा, अभी इधर ध्यान देना। टोटल एनर्जी इज ke plus pe and this is -40, this can be zero. So can I say maximum potential energy can go up till where? हेलो, -40 तक जा सकता है ना ये? यस और नो? यस और नो? हेलो, मतलब इसको -40 मिनिमम होना ही है ना? हेलो, यस और नो? Yes, sir. That means minimum potential energy has to be how much? -40 या तो उससे ज्यादा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये बोलेगा मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। It should be less than -40. What happened? No, -40 ना बेटा। Minimum value of potential energy should be The -40. P max should be -40. Max should be -40. हाँ, sorry, minus is sorry. Maximum value of potential energy should be -40. क्योंकि माइनस में नंबर उल्टा हो जाता है ना, अगर ये -50 हुआ तो वो और कम हो जाएगा उससे। यस, सो -40 कौन से रीजन को बता रहा है? -40 कौन से रीजन को बता रहा है? नन ऑफ दी अबव ना? हेलो, हेलो, यस और नो? हेलो Yes, भाई, sir. भाई पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम कितना होना है? 40 तो होना ही है ना, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो -40 होना है। -40 का कोई रीजन दिख रहा ही नहीं है मुझे। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे तो पॉजिटिव है, बट अब मुझे -40 आंसर लाना है, तो नहीं हो सकता ना इधर लाकर। और ये भी -35 तक जा रहा है। अगर ये -40 होता तो मैं बोलता ये रीजन हो सकता है, बट ये भी तो -35 है। और हमको कम से कम पोटेंशियल एनर्जी कितना मांगता है? कितना मांगता है? -40 मांगता है। यस और नो? Yes, sir. कम से कम आपको -40 चाहिए। ओके, उससे कम होगा तो चलेगा, ओके, -35 होगा या इससे नहीं चलेगा, दैट इज देयर। और दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चन। Now this is again very simple question, this you all can do. ये second comprehension type है। Start with match the column. Match the column 3-4 करते हैं हम लोग, and then subjective की बारी है। subjective हम लोग next time चला लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। A body is displaced from 2 to axis 4 to axis 2. Can I say how much is the displacement? कितना है यार डिस्प्लेसमेंट? -2. -2 है, +2 नहीं है। फॉर द फोर्स मेंशन, ये कोई टाइम पास है यार। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज -2 आई कैप ना। ये तो पहले केस में फोर्स वर्क डन क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बाबा? यू नो इट यार, F bar डॉट S bar। चलो पहले केस में
वर्क Negative. डन क्या है? बिकॉज एस बार नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा एंड उसका यूनिट कितना रहेगा, कितना वैल्यू रहेगा, कितना वैल्यू रहेगा बेटा? -8. 8 रहेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज 8, तो ये हो जाएगा क्यू एन एस। चलो सेकेंड आंसर बोलो। देखो जे तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज दैट ओनली ना। हेलो, जे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, जे तो कुछ है ही नहीं, जे का फोर्स लगा के कोई मतलब नहीं है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उधर। तो क्या आंसर है? सेम आंसर है ना, क्यू एस ही है। हेलो Yes, sir. हेलो, अच्छा सी वाला क्या ख्याल है? सी वाला आई थिंक इट इज -4 राइट। हेलो, यहाँ पर आंसर आएगा पॉजिटिव एंड 8 एंड यहाँ पर भी पी एंड एस, यस और नो? हेलो हेलो, y'all are experts man, come on यार, ये क्या है? हाँ हेलो, Yes, sir. ये तो सब ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू पॉजिटिव चार्जेस Q एंड Q। अब ये देखो, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, स्टेबल अनस्टेबल के केसेस में प्लस Q is fixed at -a, 0 and there is plus Q another at a, 0 and the third charge Q is placed at the origin। तो यहाँ पर एक प्लस Q हमने ओरिजिन पर लगा दिया। कंसिडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन अबव। अब मेरी बात सुनो, सपोज मैंने इधर उठाया इसको, इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया मैंने x, और ये यहाँ पर आ गया, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो कैन आई से नेट फोर्स विल बी हियर और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो हियर। So can I say force and displacement along the y-axis are in the same direction? So this type of equilibrium को क्या बोलते हैं बेटा? Along the y-axis कौन सा equilibrium है यार? ये unstable है, unstable है ना? Along the y-axis it is unstable. Along x-axis के बारे में बात करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने खिसका दिया इसको इधर, डिस्प्लेसमेंट ये और ये इसको ऐसे धक्का मारेगा, और ये इसको ऐसे धक्का मारेगा, बट कोई बता सकता है कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा डोमिनेंट, F1 के F2? F2. F2 डोमिनेंट है, F2 डोमिनेंट है कि F1 डोमिनेंट Sorry, है? F1. बिकॉज रिलेशन तो मालूम है ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना बेटा। हेलो, तो जिसके Yes. नजदीक होगा उसका फोर्स डोमिनेंट रहेगा। तो हु इज डोमिनेंट? F1 इज डोमिनेंट, दैट मींस द फोर्स नेट इज दिस वे। So can I say over here the force and the displacement are there in the opposite direction? So which type of equilibrium is acquiring along the x-axis beta? Hello, Stable. स्टेबल है ना? ये सब चीजें आपको आती है। अब बोल रहे हैं z एक्सिस पे क्या होगा? z एक्सिस विल बी सेम एज दैट ऑफ y एक्सिस। देखो ना, सेम चीज है। z एक्सिस में अगर z एक्सिस मतलब क्या है कि ये प्लस q है, ये प्लस q है, और ये प्लस q है। z एक्सिस मतलब इधर आ गया, इधर बाहर की तरफ। ये वही हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे। ये सपोज ये इधर आ गया तो ये z एक्सिस में लेकर आते हैं हम लोग, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो ऐसे ही नेट फोर्स भी इधर लगा। हेलो, कौन सा इक्विलिब्रियम बन गया? जल्दी 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 मैन, क्या होता है ये? हेलो, Unstable. अनस्टेबल ही बोलेगा तो ये अनस्टेबल मतलब क्या? क्यों हो गया ये? अच्छा, अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू y, तो अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू y मतलब कितना डिग्री? कितना डिग्री ओरिजिन से? 45. 45 डिग्री ओरिजिन से हम। सो सपोज यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये लाइन है x इज इक्वल टू y पर, यहाँ पर रख दिया, ये फोर्स एक्ट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इतना है। बट कैन आई से ये फोर्स एंड ये फोर्स का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में नहीं आएगा, कोई भी दूसरे डायरेक्शन में आएगा, यस और नो? हेलो, अरे भाई ये ऐसे बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, सही है ना? दिस इज लेस, so the net force will be some other direction,
Yes or no? So can I say this position is what? नो इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि वो वापस थोड़ी आने वाले हैं और नेट फोर्स जीरो थोड़ी है उधर. हेलो, यस और नो? Yes, sir. It is no equilibrium condition because equilibrium will only be existing along the x and the y axis. x is equal to y लाइन पर अगर आप घुमाते हो तो नो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो कोई मैच थोड़ी करेगा. और न्यूट्रल भी नहीं रहेगा. न्यूट्रल में कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो ही होता है, मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. एट एनी पॉइंट नेट फोर्स इज जीरो. दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. ठीक है भाई. हेलो हेलो, आई ऑल डू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Question number 3, that is the last question I am doing. Pay attention, a very nice question it is. Block A with the spring is released from point A. Point B is the mean position and the block moves to point C. Match the following condition. सही है क्या? अच्छा, सपोज यहां पर कौन सी एनर्जीज मौजूद है इसके पास इस पोजीशन पर? हेलो, कोई बता सकता है विच एनर्जीज आर देयर ओवर हियर? हेलो, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, कैन आई से इस पॉइंट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? अरे है कि नहीं? और कौन सा एनर्जी है? हेलो, स्प्रिंग Spring. एनर्जी है. स्प्रिंग एनर्जी है. ये भी है. काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है, एक्सट्रीम है ना. हेलो 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 हेलो, यस और नो? अरे भाई बोलो, करेक्ट है क्या? यस और नो? अब ये पूरे रास्ते में देयर इज कंजर्वेटिव एनर्जी. तीनों जो है, ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग जो है, वो सब कंजर्वेटिव है. अच्छा, नीचे आते समय सपोज इट कम फ्रॉम ए टू बी. मजा आएगा, सब लोग इधर ध्यान देना. व्हेन इट कम फ्रॉम ए टू बी, कौन सा एनर्जी बढ़ा और कौन सा एनर्जी घटा? चलो बोलो, कौन सा एनर्जी घटा और कौन सा एनर्जी बढ़ा? हाँ भाई. Spring energy increased and gravitation. स्प्रिंग एनर्जी इंक्रीजेस कि स्प्रिंग एनर्जी डिक्रीजेस? क्या बोल रहे हो आप? हेलो, Spring energy increases. A is the natural length or not? Okay, B is the mean position. Okay, हाँ सही है. X आ गया. Gravitational potential energy Decrease. and kinetic energy Increase. increases. मजा आएगा, सब लोग इधर ध्यान दो. Okay, so this is, can I say, gravitational potential energy is decreasing, which is decreasing in spring energy plus की ये घट रहा है ना और ये दोनों बढ़ रहा है ना. क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या? कंजर्वेटिव है ना दोनों, तो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा ना. हेलो हेलो, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? अरे मैन, प्लीज टेल मी. यहाँ पर स्प्रिंग इज देयर इन द नेचुरल लेंथ ना, तो ये जीरो हो गया ना. ये नेचुरल लेंथ है ना. हेलो, यस और नो? अरे भाई बोलो. Yes, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नॉन जीरो है. स्प्रिंग एनर्जी और के में बदल रहा है दोनों. एक घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है. ओके, अच्छा.
B2C क्या हो रहा है? B2C क्या हो रहा है? कौन घट रहा है और कौन बढ़ रहा है? जल्दी जल्दी मैन. हेलो हेलो यार बोलो. GP is decreasing. Gravitational potential energy is decreasing. Okay. Who else is decreasing? Kinetic. The spring जा रहा है extreme की तरफ. Yes or no? This will increase and this both will decrease. Yes or no? Hello. Hello. Are you all understanding? Are you all understanding? बाबा क्या हो रहा है? हेलो. ये पूरा चीज समझ आया क्या आपको? Yes, sir. ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, जो ग्राउंड की तरफ जा रहा है. काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रहा है बिकॉज यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो होता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर. एंड स्प्रिंग एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम. ओके चलो शुरू करते हैं. फ्रॉम ए टू बी decrease in gravitational potential energy is more than increase in or less than or equal to increase in spring energy. ये फॉर्मूला की तरफ नजर दौड़ाओ. decrease in gravitational potential energy will be, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कितने पार्ट्स हो रहे हैं? दो पार्ट्स हो रहे हैं ना बेटा. एक हिस्सा इसको जा रहा है, दूसरा हिस्सा इसको जा रहा है. तो ये आंसर क्या रहेगा? तो यार ग्रेटर देन, बिकॉज इसके दो हिस्से हो रहे हैं ना. कैन आई से दिस विल बी ग्रेटर देन? यस और नो? Yes, sir. ग्रेटर देन, क्योंकि दो हिस्से में बढ़ रहा है वो, एक हिस्से में नहीं है. फ्रॉम ए टू बी increase in kinetic energy is dash the decrease in spring potential energy. Hello. From A to B, A to B, decrease in potential energy, decrease in, नहीं, हाँ, increase in kinetic energy is greater than or less than or equal to decrease in spring potential energy. क्या हो रहा है यार? ये इंक्रीज इन काइनेटिक, मगर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? कोई बता सकता है क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रहा है. वन पार्ट गोज इन स्प्रिंग एनर्जी एंड द अदर पार्ट गोज इन काइनेटिक एनर्जी. कोई बता सकता है क्या कॉन्सेप्ट है इसका? हेलो 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 हेलो. यस और नो? अरे बोलो मैन, कौन? टेल मी. सोच के बताओ जरा. अरे सोच के बताओ मैन. थर्ड. ओके increase in kinetic energy will be dash the decrease in spring potential energy. कुछ प्रिंटिंग रॉन्ग है क्या? प्रिंटिंग विंटिंग कोई मिस्टेक है? यस हेलो. From A to B, the increase in kinetic energy is greater than the decrease in spring potential energy. But there is no decrease in spring energy. Both are increasing only, na? Hello. Hello. Look at the question. Just look at the question. Question में क्या बोल रहा है? अरे भाई, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही मैं बोल रहा हूँ. ये प्रिंटिंग रॉन्ग है भाई. हेलो हेलो, आई ऑल देयर और नॉट?
Yes, sir. Yes, sir. अभी समझा ना? तो रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया. तो फ्रॉम ए टू बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑब्वियसली लेस देन ना. ये इसके दो हिस्से हो रहे हैं फिर से. ग्रेविटी दो पार्ट में बट रहा है. फिर नेक्स्ट फ्रॉम बी टू सी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज डैश इंक्रीज इन स्प्रिंग एनर्जी. बोलो. बी टू सी decrease in kinetic energy will be dash increase in spring energy. यार ये देखो ये ज्यादा है ना और ये दोनों का पार्ट मिल रहा है ना. Obviously the answer will be less than because this is one part only na and this is comprising of two parts. And from B to C decrease in gravitational potential energy is dash increase in spring energy. बोलो. हेलो यार इसको देखो फिर से देखो. डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक है ये और ये दो हिस्सा है. तो ये क्या रहेगा फिर से लेस देन हो जाएगा ना. यस और नो. हेलो हेलो. Yes, sir. So this is how we do the whole concept of work energy theorem, work energy power, and I hope you all have understood everything. The next time we can start with subjective questions. I think 18 questions आ जाए तो हम लोग एक ही टाइम में खत्म कर देंगे. And then we can start with our circular motion, which is very easy chapter generally. ठीक है. चलो. Thank you very much. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you.